السلام علیکم پاکستان اون نیوز سے میں حریہ چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ ڈی سی کمپلیکس وزیر آباد عارضی انتظام کے لیے کٹلری انسٹیٹیوٹ سیالکوٹ روڈ وزیر آباد کی عمارت کا انتخاب کیا گیا۔ شمشیر شہزاد کی رپورٹ کے مطابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری خالد محمود چیمہ نے اسسٹنٹ کمشنر رانا امجد محمود، پی ٹی آئی رہنما چودھری محمد یوسف، میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر وقار احمد، سب انجینئر شفقت جاوید چیمہ، سابق چیئرمین کٹلری کلسٹر ایسوسی ایشن خالد مغل، صدر پریس کلب، چیئرمین الیکٹرانک میڈیا کلب وزیر آباد سمیت دیگر موجود تھے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری خالد محمود چیمہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صوبے کی ترقی پر یقین رکھتے ہیں، نئے اضلاع بنا کر عوام کے لیے ترقی خوشحالی کے دروازے کھولیں گے۔ نئے اضلاع میں جہاں شہریوں کو مقامی سطح پر بنیادی سہولیات میسر آئیں گی، وہیں علاقے میں روزگار کے وسیع مواقع میسر آئیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ضلعی دفاتر کو نئے اضلاع میں فوری چالو کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے فوری طور پر انتظامی افسران کی تعیناتیاں کر دی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما چودھری محمد یوسف نے کہا کہ کٹلری انسٹیٹیوٹ میں عارضی دفاتر کے قیام سے شہریوں کے ضلع سے متعلقہ معاملات وزیر آباد شہر میں ہی ڈیل ہوں گے۔ شیخوپورہ میں شیلر کی دیوار گرنے سے مزدور ملبے تلے دب گئے۔ شاہدرہ فلور مل کے عقب میں نئے زیر تعمیر رائس شیلر کی دیوار گر گئی۔ دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر 2 مزدور جاں بحق سمیت 3 مزدور زخمی ہوئے۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ حادثے میں موقع پر جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ حافظ محمد اکرم مہر پاکستان تحریک انصاف مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ، ان کو کوآرڈینیٹر لائف اسٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب تعینات کر دیا۔ ان کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ مختلف پارٹی رہنماؤں نے ان کو دلی مبارکباد پیش کی، ان کا آنا خوشائن قرار دیا۔ حافظ محمد اکرم مہر نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، صوبائی وزیر لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ سردار شہاب الدین کا، کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری سونپی۔ تحریک ینگ یوتھ فورس اور سماجی کارکن دل شہزاد چودھری عبدالماجد نے بھی حافظ محمد اکرم مہر کو دلی مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں خواہشات کا اظہار کیا۔ سوشل ویلفیئر آفیسر مری غالب حسین عباسی پرائس مجسٹریٹ تھانہ نیو مری میں بہترین خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ میڈیکل سوشل آفیسر ٹی ایچ کیو مری میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے غالب حسین عباسی کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اب پرائس مجسٹریٹ تحصیل مری تعینات کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مری میں موجود ہمارے نمائندے مظہر محمود عباسی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سوشل ویلفیئر آفیسر مری غالب حسین عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں میڈیکل سوشل آفیسر ٹی ایچ کے اسپتال مری بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مزید ان کو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے آرڈر کے ساتھ اضافی ڈیوٹی اسپیشل پرائس مجسٹریٹ تحصیل مری تعینات کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے نیو مری تھانہ کے علاقے میں بھی یہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں غالب صاحب سے۔ سر بتائیے گا کہاں پہ آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں؟ جی بہت شکریہ جناب۔ میں تقریباً 8-10 سال سے سوشل ویلفیئر آفیسر مری تعینات ہوں اور میڈیکل سوشل آفیسر ٹی ایچ کے اسپتال مری کا میرے پاس اضافی چارج ہے۔ یہ بھی تقریباً 8-10 سال سے میں ادھر بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں اور الحمدللہ اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش کی ہے کہ مری کے عوام کی جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جہاں پیشنٹ آتے ہیں، ان کی جتنی ہم خدمت کر سکیں، اور اس میں میرا ڈپارٹمنٹ، اس کے علاوہ زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ، ان سب کا میرے ساتھ تعاون رہا ہے، اسپتال انتظامیہ کا میرے ساتھ تعاون رہا ہے۔ تو ہم نے 8-10 سالوں میں کافی تعداد میں لوگوں کو جو ڈیزرونگ پیشنٹ ہیں ان کو میڈیسن بھی دی ہے اور ان کا فری ٹریٹمنٹ بھی کروایا ہے۔ ابھی تقریباً 2-3 مہینے پہلے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے میری اضافی ڈیوٹی اسپیشل پرائس مجسٹریٹ تھانہ پتریاٹا حدود میں میری لگوائی تھی، تو اس میں میں نے اپنی طرف سے یہاں بھی ٹائم دیتا رہا ہوں اور وہاں بھی فیلڈ میں جا کر جتنی بھی میری ہمت اور بس میں تھا میں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ اور پھر تقریباً ابھی 2 دن پہلے ڈی سی صاحب نے مجھے شاید میری پروگرس کو دیکھتے ہوئے یا شاید ان کو کوئی ضرورت تھی میری، تو انہوں نے تحصیل مری میں اسپیشل پرائس مجسٹریٹ تحصیل مری کے میرے آرڈر کیے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ تحصیل مری میں جو بازار ہیں، جو بزنس پوائنٹ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں وہاں جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ جو سرکاری پرائس لسٹ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ جو تاجران ہیں وہ اپنی فروخت کو سر یہ بتائیے گا، نیو مری میں آپ کی پروگرس بہت اچھی رہی ہے، ڈپٹی کمشنر نے آپ کے اس کام کو دیکھتے ہوئے تحصیل مری کا بھی آپ کو چارج دے دیا ہے،
चीका गली, कुलडन्ना, सनी बैंक, लोअर बाज़ार, मोची मंडी बेपनाह रेट हैं दुकानदारों के, ख़ुद भी चेक किए हैं, एसी साहब ने भी चेक किए हैं। इस हवाले से कब तक आप इनके लिए लिस्टें जारी करेंगे? जी, मैं अपनी जो पथरियाटा की हदूद में जो मेरी ड्यूटी थी उसमें मैंने बहुत ज़्यादा विज़िट किए हैं, बहुत इंस्पेक्शन किए हैं उस एरिए में। वो मेन जो बाज़ार था तो सिर्फ न्यूमेरी का ही था, बाकी बन यूनियन काउंसिल है वहाँ भी छोटा सा बाज़ार है, वहाँ भी मैं गया हूँ और दुकानदारों को पहले तो जाके उनको समझाया है कि जो सरकारी नफरामे है वो आवेदन भी करें और उसके मुताबिक अपनी फ़रोख्त को यकीनी बनाएं, और उसके बाद अगर किसी ने उस पर अमल नहीं किया तो उसको वार्निंग दी है, उसको चालान भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो एरिया था न्यूमेरी, वहाँ अगर आप जाके देखें तो हर दुकान के आगे प्राइस लिस्ट जो सरकार की तरफ से जारी होती है वो अवेज़ा हैं और दुकानदारों ने उसके मुताबिक अपनी फ़रोख्त को यकीनी बना रहे हैं। फिर भी मैं परसों भी मैं गया था तो जो भी वायलेशन थी उस पर मैंने उनको चालान भी किए। अब जो अमेरिका बाकी एरिया है उसमें सैनी बैंक, कुलडन्ना, जिगा गली, मरी, लोअर बाज़ार, इसी तरह आगे दरिया गली बाज़ार है, बाड़ियाँ बाज़ार है, इसके अलावा बुरबन वाली साइड पे ऊपर देवल बाज़ार, फगवाड़ी, अलियोड़, शेर बगला, ये बड़े मेन बाज़ार हैं। त्रेट है, घोड़ा गली है, बहुत बड़ा एरिया है। तो मैं इंशाल्लाह ताला अब 1-2 दिन में मैं इंशाल्लाह ताला उधर भी अपनी मैं निकलूँगा और जितना मुझसे हो सका, जितनी एफ़र्ट्स हो सकें उसमें दुकानदारों को पहले कि आपके आने के बाद जो न्यूमेरी के बाज़ार के जो रेट हैं वो बहुत मुनासिब हैं। जी बिल्कुल, गालिब अब्बासी साहब की आपने बात सुनी। डिप्टी कमिश्नर के आर्डर के साथ इनको तहसील मरी का चार्ज भी दे दिया गया है। पूरी तहसील मरी में ये अब रेट लिस्टें चेक करेंगे और जिन लोगों का इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे जो दुकानदार, उनको जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इनके आने के बाद इंशाल्लाह जो मरी के इर्द गिर्द के बाज़ार हैं, चीका गली हो गया, कुलडन्ना, सनी बैंक, बाड़ियाँ और दीगर जो इलाके हैं उनमें भी बहुत जल्द प्राइस लिस्ट जारी कर दी जाएंगी। जी। और इधर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने मुल्की तारीख का पहला स्पोर्ट्स मेडिकल क्लिनिक कायम कर दिया। मुल्की तारीख के पहले स्पोर्ट्स मेडिकल क्लिनिक में खिलाड़ियों के इलाज के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और मुल्क के मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आमिर अजीज़ के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद हुई। जानते हैं तफसीलात अजहर काज़मी से। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने मुल्क की तारीख का पहला स्पोर्ट्स मेडिकल क्लिनिक कायम कर दिया। मुल्क की तारीख के पहले स्पोर्ट्स मेडिकल क्लिनिक में खिलाड़ियों के इलाज के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और मुल्क के मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आमिर अजीज़ के दरमियान MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तकरीब नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद हुई। तकरीब के मौका पर DG स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी और सर्जन डॉक्टर आमिर अजीज़ ने MOU पर दस्तखत किए। इस मौका पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के DG तारिक कुरैशी का कहना था कि मुल्क के मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के एथलीट्स का मुफ्त इलाज करेंगे और ये पंजाब के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। इस मौका पर मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आमिर अजीज़ ने कहा कि खिलाड़ी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करते हैं, मुझे खिलाड़ियों का इलाज करके खुशी होगी। मुल्क की तारीख के पहले स्पोर्ट्स मेडिकल क्लिनिक का क़याम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का बेहतरीन इक़दाम है। तकरीब में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के DG मोहम्मद तारिक कुरैशी समेत आर्थोपेडिक डॉक्टर सर्जन आमिर अजीज़ और डायरेक्टर एडमिन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब सैयद उमैर हसन ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी ऑन न्यूज़ TV लंदन। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मकीम से। हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के मरकजी दफ्तर हुजरा शाह मकीम में राना नुमान अली एडवोकेट पर भरपूर एतमाद करते हुए कसीर तादाद में मुख्तलिफ बरादरियों ने शामिल होने का ऐलान किया। इस मौके पर राना नुमान अली एडवोकेट ने कहा कि इंशाअल्लाह चौधरी औरंगजेब जट ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर पूरा उतरूंगा और इमरान खान का पैगाम हर फर्द तक पहुँचाऊँगा। इस मौके पर सरदार यासीन कंबो, चेयरमैन ज़कात कमेटी सरदार आरिफ कंबो, अब्दुल जब्बार कंबो, अली शेर महरब नवाज, चौधरी आबिद अली चौधरी, तौकीर आरिफ कासिम, अली तलाल चौधरी उस्मान ने अहद किया कि हम आज से आप दोस्तों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और PTI में शमूलियत अख्तियार करते हैं। राना नुमान अली एडवोकेट ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए चलते हैं जंग की जानिब। इरफान हैदर सयाल की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिना सयाल सरदार जमशेद खान बलोच को सिटी डिस्ट्रिक्ट जंग का PTI सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। हिना सयाल ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट जंग की बलोच बरादरी के अंदर अपना एक खास मुकाम और पहचान रखते हैं। मरूफ सियासी समाजी शख्सियात
हिना सयाल ने डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर इरफान हैदर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरदार जमशेद खान बलोच को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी डिस्ट्रिक्ट जंग का सदर मुकर्रर होने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। उनका कहना था कि जमशेद खान बलोच डिस्ट्रिक्ट जंग में अपना एक ख़ास मुकाम रखते हैं। सरकारी इदारों में भी उनकी एक अलग शनाख्त और पहचान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद अपने इलाके की आवाम की बहुत सी तवक्कुआत उनसे वाबस्ता हो गई और हम उम्मीद करते हैं कि वो आवाम के मसाइल पंजाब हुकूमत से हल करवाने के लिए अपने ताल्लुकात और असर व रसूख इस्तेमाल करें। हम उनकी मज़ीद कामयाबियों के लिए दुआ को हैं। सिब्बी में आए रोज़ गैस प्रेशर में कमी और गैस जोनल मैनेजर के खिलाफ अहलियान सिब्बी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और गैस जोनल मैनेजर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। सुई सदरन गैस कंपनी जिला सिब्बी की गैस इंतजामिया ने गैस सार्फिन का जीना मुहाल कर दिया। आए रोज गैस प्रेशर में कमी होने के बायस एहलियान सिब्बी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ शाहराओं से होती हुई गैस जोनल मैनेजर ऑफिस पहुंची, जहां रैली की शुरका ने एहतजाजी धरना दिया और गैस जोनल मैनेजर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। गैस ऑफिसर गैस दो। घर में जाते हैं बच्चे बूढ़े सब गैस के लिए परेशान हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है और आपके दरवाजे पर आकर खड़े हैं। आपका ये हाल है कि आप भीख बनकर बैठे हैं। यहाँ पर 7 दिन हम लोग धरने में बैठे हैं, तब से मस नहीं हुई है ना जिला इंतजामिया ना गैस कंपनी। जो इसने सीएनजी पे 25-25 लाख रुपए लेके उन्होंने गैस सिब्बी की चोरी करके दी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शटर डाउन का हड़ताल भी देंगे और इसके साथ साथ नेशनल हाईवे को नाड़ी बैंक के मकाम पर गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद करेंगे। ये आज देख रहे सिब्बी के लोगों की ताकत। हम आपको तंबीह करते हैं कि आप रज़ाकाराना तौर पे अपना ट्रांसफर कराएं। इसने गैस बेची है, इसने चोरी करके इसने मुल्कों में दी हुई है, इसने आसपास लोगों में चोरी गैस करके दी हुई है, जो हमें गैस प्रेशर में लोड शेडिंग दी हुई है। दफ्तरों के सामने कचरे लाने के फेंकेंगे। खालिदा रफाइयों से कहेंगे हम कि आज का ओजरी का गंद रोड पर नहीं फेंकना। मेरे ट्रैक्टर आएंगे, यही ओजरी वाला कचरा जब तेरे कैच के सामने आएगा, खुदा की कसम इस बदबू से तू तो क्या तेरे हमारा वादा है कि इस नाअहल और करप्ट राशि ऑफिसर को हम बांध की सिब्बी के लोगों के साथ गैस के इस गाड़ी में डाल के इसको बोलेंगे इसको कोयटा में संभालो, ये तोहफा अपना, हमें कोई और ऑफिसर। गैस सार्फिन और सिब्बी की आल सियासी व समाजी तंजीमों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि अगर गैस प्रेशर की कमी को जल्द अज जल्द दूर नहीं किया गया और गैस जोनल मैनेजर का तबादला सिब्बी से नहीं किया गया तो हम कोयटा सिब्बी कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना देकर रोड ब्लॉक कर देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी गैस इंतजामिया सिब्बी पर आयद होगी। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। रुख करते हैं नवाब शाह का। सईद ज़ैनुल आबिदीन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक द बेस्ट जेटिक की डायरेक्टर वहीदा मैसर ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तावन से कायम करदा जेंटिक टेंट सिटी का दौरा किया और उसमें रहायश पजीर औरतों और बच्चों में मुख्ताबर भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी की जानिब से गिफ्ट करदा चप्पल और जेंटिक के शागिर्दों के तैयार करदा कपड़े तकसीम किए, उनको हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। इससे कबल डायरेक्टर द बेस्ट जेंटिक ने बैतुल माल स्वीट होम नवाब शाह का विजिट भी किया और वहाँ पर रहायश पजीर बच्चों में शूज़ चप्पल गिफ्ट तकसीम किए। विजिट के दौरान स्वीट होम के इंचार्ज में सना असलम को बच्चों के लिए तरबीती और हुनरी कोर्स करवाने का भी इजहार किया ताकि तालीम के साथ साथ बच्चों में हुनर भी लाजमी तौर पर हो और ये किसी के मोहताज ना बने। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए वहीदा मैसर का कहना था कि टेंट सिटी में रहने वाले लोग हमारे अपने हैं, उनको और इस धरती के वारिस हैं जो कि आज मुश्किल में हैं, उनके लिए हमने ये मुमकिन तावन की काविशें की हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। प्रेस क्लब हबीबाबाद के चेयरमैन सीनियर सहाफ़ी अमजद अली चौधरी की सालगिरह की तकरीब प्रेस क्लब में मुनक्किद हुई। सालगिरह की तकरीब में सीनियर सहाफ़ियों समेत सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। प्रेस क्लब हबीबाबाद के चेयरमैन अमजद अली चौधरी की सालगिरह की तकरीब प्रेस क्लब हबीबाबाद में मुनक्किद हुई। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी हाजी अलादिता चौधरी, मोहम्मद अवैस, हाफिज शफाकत जरगर, वसीम शहजाद, खादिम हुसैन, नवीद कादरी, मुबशिर बशीर चौधरी,
शहजाद अहमद समेत सहाफ़ियों और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत करते हुए अमजद अली की सालगिरह का केक काटा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उनकी सहाफ़ती खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन भी पेश किया। खबर शामिल करते हैं फर्रुखाबाद से, जहां पर मोहम्मद शफी की रिपोर्ट के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी के सीनियर क्लर्क शौकत अली को सर्विस मुकम्मल करके रिटायर्ड होने पर खराज तहसीन पेश करते हैं और इसके अलावा एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शफीक से। जी शफीक, मज़ीद आगाह कीजिएगा। म्यूनसिपल कमेटी फारूकाबाद में पुरवकार अलवदाई तकरीब बसिलसिला रिटायरमेंट ऑक्ट्रा क्लर्क म्यूनसिपल कमेटी फारूकाबाद में मुनक्कद हुई, जिसमें शौकत अली को सर्विस के शानदार 40 साल मुकम्मल करके रिटायर्ड होने पर खराज तहसीन पेश करते हुए चीफ ऑफिसर MC जवेद इकबाल चौहान समेत अफीसरान ने शौकत अली की 40 साला खिदमात को सराहा। शौकत साहब की कोई एक नॉट अ सिंगल कंप्लेंट भी मेरे पास नहीं आई तो लोगों ने आके मुझे कहा हो कि शौकत साहब जो है उन्होंने हमसे पैसों की डिमांड की, उन्होंने हमसे कुछ किसी चीज़ की डिमांड। 20 साल बाद उनकी बेतहाशा खिदमत और शानदार सर्विसेज और अपने काम से दिलचस्पी और लगन ने उन्हें आज इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज वो अल्हम्दुलिल्लाह 14वें स्केल में 14 स्केल में बतौर ऑक्ट्राई क्लर्क रिटायर होकर जा रहे हैं। मोहब्बत से मैं इनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। शौकत अली को पूरे स्टाफ के हमरा ढोल की थाप पर उनकी सीट से स्टेज तक पुरकशिश अंदाज में लाया गया और हर स्टाफ मेंबर ने अपने अपने अंदाज में सलाम पेश करते हुए तहाइफ पेश किए। इस मौका पर शौकत अली के मातहत अमला तहाइफ पेश करते हुए आप दीदा नज़र आए और चीफ ऑफिसर की जानिब से तमाम स्टाफ समेत हाजरीन को पुरतकल्लफ खाना पेश किया गया। आखिर में चीफ ऑफिसर बल्दिया फारूकाबाद जवेद इकबाल चौहान अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके पूरे प्रोटोकॉल के साथ सच्चा सौदा बंडोर गांव में उनके घर छोड़कर आए। खबर शामिल करते हैं फर्रुखाबाद से। शेलर की दीवार गिरने से मजदूर मलबे तले दब गए। हाँ जी बिल्कुल, हम आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। शाहदरा फ्लोर मिल के अकब में नए ज़ेर तमीर राय से शेलर की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 2 मजदूर जाम हक समेत 3 मजदूर जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 शेखपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में मौके पर जाम हक होने वाले अफराद की लाशों को लवाहकीन के हवाले कर दिया। रुख करते हैं दायरा दिन पनाह का। मलिक कफातुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक चौक सरवर शहीद मरकजी चौक के करीब सब्जी मंडी के पास अचानक ट्रॉलर को आग लग गई। चौक सरवर शहीद की इंसामिया समेत रेस्क्यू 1122 मुतहर्रिक 10 मिलियन के नुकसान पर 14 मिलियन को बचा लिया गया। दायरा दिन पनाह चौक सरवर शहीद मरकजी चौक के करीब सब्जी मंडी के पास अचानक ट्रॉलर को आग लग गई। चौक सरवर शहीद की इंसामिया समेत रेस्क्यू 1122 मुतहर्रिक वहां पर मौजूद शख्स ने फौरन रेस्क्यू 1122 को कॉल की और ट्रॉलर जिस पर न्यू कारें लोड हैं को आग लग गई। आप जल्दी से अपनी फायर व्हीकल भिजवा दें। रेस्क्यू कंट्रोल रूम मुजफ्फरगढ़ ने फौरी तौर पर जाए हादसे पर चौक सरवर शहीद की पॉइंट से एम्बुलेंस और रेस्क्यू सेंट्रल स्टेशन मुजफ्फरगढ़ से फायर व्हीकल ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया और वहां पर मौजूद शख्स ने कहा कि ट्रॉलर के इंजन और कार को आग लगी। एम्बुलेंस स्टाफ ने पेशावराना महारत को बरोए लाते हुए पानी वाली मोटर से फायर फाइटिंग शुरू कर दी और आग को मजीद फैलने से रोक दिया और बड़े माली नुकसान से बचा लिया। फायर व्हीकल स्टाफ ने ऑन लोकेशन होकर कूलिंग का अमल शुरू किया। इस वक्त 10 मिलियन के नुकसान पर 14 मिलियन मालियत सामान को महफूज कर लिया गया। इस दौरान 15,000 लीटर पानी इस्तेमाल हुआ। DPO शेखपुरा के हुक्म पर SP इन्वेस्टिगेशन के जरिए निगरानी थाना हाउसिंग कॉलोनी के SHO बशारत गुज्जर ने थाने का चार्ज लेने के बाद 2.5 माह की अनथक मेहनत के बाद अंधे कत्ल के मुलजिम माजिद उर्फ माचो को गिरफ्तार कर लिया। मजीद मीडिया से बातचीत करते हुए SHO बशारत गुज्जर का क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 7-8 माह पहले अप्रैल के महीने में जो है एक वकूआ पेश आया। इधर नदीम कोट 5 नंबर टूबल आबादी है, वहाँ पर वहीद मसीह नामी लड़का जो है ये अगवा हो गया था। इसके अगवा का मुकदमा जो हमारे पास दर्ज था और जब मेरी पोस्टिंग हुई है यहाँ 21/7 को, तो उस वक्त जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो उसके अगवा की बाबत जो है वो पिटीशन दायर थी। तो वो वहीद मसीह जो है वो नहीं मिल रहा था। हाई कोर्ट की तरफ से आलिया नीलम साहबा, जस्टिस आलिया नीलम साहबा की तरफ से भी डायरेक्शन थी। तो फिर इसमें जो है वो DPO साहब हमारे फैसल मुख्तार साहब, उनकी हदायत पे फैसल साहब और फ़रूक बुटर साहब हैं हमारे SP इन्वेस्टिगेशन, उनकी ज़ेर निगरानी DSP साहब सिटी के तावन से जो है वो हमने फिर इस केस पे काफ़ी काम किया। जदीद टेक्नोलॉजी और तमाम वसाइल को जो है वो बरूए कार लाया गया
اور اس کیس پہ ہم نے دن رات جو ہے وہ کام کیا. جب اس پہ کام کیا گیا تو یہ پتہ چلا اس کے کیس کے دوران جو ہے وہ وحید مسیح جو ہے یہ ایکچولی بھٹا خشت پہ کام کرتا تھا اور روزانہ جو ہے اپنا کام ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ریڈی تھی, جو سانچہ تھا, جو سامان تھا اینٹیں بنانے والا, وہ اپنی ایک عزیزہ جو رشتے میں اس کی بابی لگتی تھی, ماریا بی بی, وہ اس کا گھر بھی بھٹا کے ساتھ ہی ملحقہ آبادی میں تھا, تو اس کے گھر یہ تمام اپنی چیزیں جو ہیں وہ رکھنے جاتا تھا. تو بروز وقوع بھی یہ وہاں ہی چیزیں رکھنے کے لیے جو ہے وہ گیا تھا, لیکن یہ واپس نہ آ سکا. تو یہ بات جو ہے وہ پھر سامنے آئی. اس کے تمام جب اس پہ ہم نے ورک کیا تو پتہ چلا کہ ماریا بی بی جو ہے اس کے اسی آبادی کے ایک ماجد عرف ماجو ارائیں جو لڑکا تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز تعلقات تھے. تو ان ناجائز تعلقات کا جو ہے وہ علم وحید مسیح جو اس کا دیور لگتا تھا رشتے میں ماریا کا, اس کو ہو گیا تھا. تو جب اس کو ان کا علم ہوا, ماریا اور وحید کی ایک ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ موجود تھی جس میں وہ اسی طرح کا ذکر کرتے ہیں. ماریا اپنے خدشات کا اظہار کرتی ہے اور اس کو منع کرتی ہے کہ وہ کوئی چیز میرے خاوند کو نہ بتائے. تو اسی چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے جو ہے وہ ہم بنیاد بنا کر اس کو چلے ہیں. اور جب اس پہ کام ہوا تو پھر یہ بات واضح ہوئی کہ وحید جو ماجد عرف ماجو ہے اس نے بروز وقوع جو ہے وہ ماریا بی بی کے ساتھ انہوں نے جو ہے پورا پلان بنایا ہے. اور پھر وحید مسیح جب اس دن ان کے گھر میں آیا تو اس کو جو ہے پکڑ کے گلے میں صافہ ڈال کے ان لوگوں نے, ماریا نے اور ماجد نے جو ہے ماجد عرف ماجو نے, اس نے جو ہے وہ اس کا وحید مسیح کا مرڈر کیا وہاں. اور بعد ازاں ناش جو ہے اس کو گدھا ریڈی پہ جو ہے وہ اس پہ لاد کے بوری میں بند کر کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ برسیم کا جو ہے وہ چارہ ڈال کے یہ خانپور نہر پہ لے کے گئے ہیں. وہاں نہر میں جو ہے وہ انہوں نے ناش کو جو ہے وہ پھینکا ہے. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਤਲਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ. ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਨਪੁਰਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ. DIG ट्रैफिक पंजाब DPO शेखपुरा और DSP ट्रैफिक शेखपुरा इकबाल हमीद रान की खसूसी हिदायत पर लारी अड्डा मानावाला में कम उम्र रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कम उम्र ड्राइवर के चालान किए गए. इस मौके पर ट्रैफिक सार्जेंट उस्मान वट्टू हमरा मोहसिन वट्टू का कहना था कि कम उम्र रिक्शा ड्राइवर की वजह से रोज़ बरोज़ हादसात की तादाद में इजाफा हो रहा है, जबकि ट्रैफिक की रवानगी में भी रुकावट का बायस बनते हैं. मज़ीद कहा कि आइंदा से इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा कि कोई भी कम उम्र रिक्शा ड्राइवर रोड पर रिक्शा ड्राइव ना करे ताकि अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए. टर्नर मोहम्मद खान से खबर शामिल करते हैं. ग्रैंड हेल्थ अलाउंस की कॉल पर आज तीसरे दिन भी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लेडी डॉक्टर्स और नर्सेस ने सिंध हुकूमत की तरफ से हेल्थ रिस्क अलाउंस बंद करने के खिलाफ DHQ अस्पताल की OPD का बाइकआउट कर के अस्पताल के मेन गेट के सामने एहतजाज और नारेबाजी की. इस वक्त हमारे नुमाइंदे इशफाक OPD पर मौजूद हैं. मजीद जानते हैं उनसे. जी इशफाक, मजीद आगाह कीजिए. जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टर्नर खान DHQ हॉस्पिटल. यहाँ पे भी पूरी सिंध की तरह एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है. रिस्क अलाउंस ना मिलने के खातिर यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ ने काम छोड़ा, स्ट्राइक की हुई है. इस वक्त हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, आइए मज़ीद जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मैं आप मीडिया पर्सन का शुक्रगुजार हूँ जो आपने हमारी कॉल पे हमारी कवरेज के लिए यहाँ पे आए. और आज तीसरा दिन है जो हमारी फुल OPD का बाइकआउट है. और कल हमारे जो सेंट्रल के नुमाइंदे हैं, GHA के नुमाइंदे हैं, वो हेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात भी थी उनके मुज़ाकरात नाकाम गए. और इसलिए हमारा जो एहतजाज है वो आज भी कंटिन्यू है. और हो सकता है कि आगे जो भी GHA की कॉल होगी हमारा आगे एहतजाज कंटिन्यू होगा. और हम कराची तक प्रेस क्लब तक जाएंगे और CM हाउस का घेराव भी करेंगे, उसके तरफ मार्च भी करेंगे. इस एहतजाज का जो है मेन मकसद ये है कि हमारा जो रिस्क अलाउंस है कोरोना की जो मद में हमें दिया गया था वो कोरोना तो ख़त्म हो गया है, पर उसके अलावा भी हमारे सारे मुलाजमीन डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं और जो भी हेल्थ के मुलाजिम हैं जिसमें दूसरे भी वैक्सीनेटर आ जाते हैं, वो सारे दूसरी बीमारियों के रिस्क पर भी होते हैं. और इसलिए ये बंद करना सरासर नाइंसाफ़ी है. जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना था जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा. जी
हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 10 की CNW जून 2021 को ज़ेरे निगरानी स्टार्ट होने वाला 1 किलोमीटर तरबेला रोड 1.5 साल की तखीर से बगैर किसी हिफाजती इक़दामात के शुरू हुआ, जो फिर से अल्तवा का शिकार है। मुकामी आबादियों के लिए वबाल जान बन चुका है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नासिर अमीन। जी नासिर, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हरिपुर तरबेला रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर रोड की कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जो लोगों के लिए वबाल जान बन चुका है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं। ये रोड के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि ये रोड 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से शुरू होने वाला 1 किलोमीटर रोड जो है, 1 किलोमीटर की मुसाफत का ये रोड है, जो 4 करोड़ 20 लाख रुपए से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट है और CNW की ज़ेर निगरानी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो इस हवाले से ये वबाल जान बन चुका है। यहाँ पे गर्द आलूद माहौल है। आसपास की तमाम आबादियों में छोटे छोटे बच्चे दमे और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी यहाँ के मकामी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके इस रोड के हवाले से और इस काम के हवाले से क्या तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये रोड नहीं, हमारे लिए अजाब इस टाइम पे बना हुआ है। इस टाइम ये धूड़ आप देख सकते हैं। हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो हमें सांस दमा ये बीमारी शुरू हो जाती है। घर वाले भी बाहर निकलने ही नहीं देते। तो हमारे बुज़ुर्ग भी हैं जो आज 4 महीने हो गए हैं घर पे बैठे हुए हैं। ये इसी रोड की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो बहुत सी दफ़ा ठेकेदार को हमने बताया है कि पानी का छिड़काव करें, तो तकरीबन 4-5 दिन बाद एक टैंकर आता है तो वो पानी छिड़का के चला जाता है, लेकिन उससे भी कोई असर इतना नहीं पड़ता। लेकिन धूड़ इतनी है कि हम लोग अजाब में इस टाइम दाखिल हो चुके हैं, अजाब में है इस टाइम। तो हमारी यही अपील है कि ठेकेदार से कि रोज़ आए, छिड़काव करे, कब जल्दी इस काम को ख़त्म किया जाए। जी, यहाँ के शहरियों का यही मुतालबा है कि इस रोड का जो काम अल्तवा का शिकार है, इसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए और यहाँ पे जो पानी का छिड़काव है वो कम से कम दिन में 3 या 4 मरतबा पानी का छिड़काव किया जाए। ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि ठेकेदार को पाबंद करें कि वो आगे पानी का छिड़काव करें और लोगों को इस गर्द आलूद माहौल से निजात मिल सके। जी, समुंदरी थाना सिटी के इलाके में कचहरी रोड पर फायरिंग से पेशी पर आया एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी सरफराज को फैसलाबाद रेफर कर दिया गया, जबकि मुलजिमान मौके से फरार हो गए। इलाके भर में खौफ और हरास फैल गया, जो पुलिस की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। समुंदरी थाना सिटी के इलाका गोशरा रोड कचहरी के बाहर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। जख्मी सरफराज को सिविल अस्पताल समुंदरी मुंतकिल कर दिया, जहां से फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। जख्मी कासिम रोड समुंदरी का रिहायशी है, जबकि जख्मी सरफराज पेशी पर अदालत आया और वापसी पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया। मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। थाना सिटी के इलाके में इससे कबल भी ऐसे बहुत से फायरिंग के वाक़यात रोनमा हो चुके हैं। फायरिंग से शहरियों में खौफ व हरास फैलने लगा। पुलिस के आला अफसरान इस पर फौरी नोटिस लें। खबर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से। निज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद खास स्केली है, जिसे सेवन की टाउन कमेटी में पहले स्केल पर छोटे मुलाजिम के तौर पर रखा गया, जिसके पास सुपारी खाने के पैसे नहीं थे। अब वो इतना बड़ा अमीर कैसे हुआ? इंक्वायरी कमेटी बननी चाहिए। यह मालूम करने के लिए इसके अलावा अब अरबपति कैसे बन गया, बड़ी गाड़ियों और बड़े बंगलों का मालिक कैसे हुआ? ज़राए से मालूम हुआ कि इसके पास बड़ी कारें हैं और वो ब्लैक पैसों को वाइट करने का एक बड़ा कारीगर है। इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी 7 के सरकारी ड्राइवर इसकी बड़ी कारें किराए पर चला रहे हैं और इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी 7 की सफाई के लिए आने वाली सुजुकी गाड़ियों और लोडर बॉडीज़ को हैदराबाद में किराए पर चला रही है। इससे कोई पूछने वाला नहीं। शहर वासियों ने नैब और एंटी करप्शन अफसरान से अपील करते हुए कहा कि इस छोटे मुलाजिम के असासे चेक करें। ये 1 स्केल का भर्ती मुलाजिम इतना बड़ा अरबपति कैसे बन गया और 14 स्केल का ऑफिसर कैसे बना? और इधर पाकपतन में ट्रैफिक की वजह से बढ़ते हुए मसाइल पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन के मुताल्लिक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक की वजह से बढ़ते हुए मसाइल, चिंचिंग रिक्शों की भरमार, ट्रैफिक हादसा, स्मोक वगैरह पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सईद तौसीफ हैदर की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन के मुताल्लिक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने और आगाही के लिए शहरियों में पम्फलेट तकसीम किए। इस मौके पर DSP ट्रैफिक पुलिस पाकपतन सईद अहमद खान ने कहा कि बदकिस्मती से हुकूमतों की अदम तवज्जो की वजह से हज़ारों साल पुरानी तारीख के हामिल शहर पाकपतन में किसी भी चौक पर ट्रैफिक सिग्नल का ना होना भी ट्रैफिक हादसात की एक बड़ी वजह है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके हम अपने बच्चों और ख़ुद को ट्रैफिक हादसात से महफूज रख सकते हैं। सर बताइएगा आज के वाक़ के हवाले से क्या मकसद आ रहा है? वाक़ का मकसद है आवाम में, स्कूलों, बच्चों में, तमाम अदारों में हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं स्मोक के नुकसानात के सिलसिले में। इस सिलसिले में हम पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं और ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टरों को भी हदायत जारी कर रहे हैं
जो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा धुआं देती हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं ताकि स्मोक से ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिंध ने महकमा खुराक के तवासुत से सैलाब मुतासरीन के लिए आटे के रेट कम कर दिए। दुकान पर 130 रुपए किलो मिलने वाला आटा महकमा खुराक के स्टॉल पर 65 रुपए किलो मिल रहा है। सैलाब की तबाहकारियों के बाद महंगाई के जिन ने सर उठा लिया था और खाने पीने की अशिया के दाम एकदम बढ़ गए थे। आटा फी किलो 130 रुपए हो गया, जो गरीबों की पहुंच से दूर है। इस मौके पर हुकूमत सिंध ने महकमा खुराक की तरफ से पूरे इस्लाम में सस्ते आटे के स्टॉल लगाए, जहां आटा 65 रुपए किलो बाआसानी मिल रहा है और 10 किलो की बोरी 1650 रुपए की है। स्टॉलों की निगरानी महकमा खुराक के अफसरान जान हैदर खुद कर रहे हैं। उनका कहना था कि महकमा खुराक जगह जगह गरीबों को सस्ता आटा देने तक उनके स्टॉल लगा रहे हैं। ख़ास तौर पर मंगल बाज़ार और बुध बाज़ार में स्टॉल लगाए जा रहे हैं ताकि वहां ख़रीदारी के लिए आने वाले इस सहूलत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।